अगर आप एक कुत्ते की पिटाई एक डंडे से करते हो तो कुत्ता हेट करेगा कि आपके हाथ में डंडा है। If you beat up a dog with a stick, the dog will hate that कहेगा stick बस in your डंडा hand. हटाओ इसके हाथ से किसी तरीके He'll से। just remove that stick शैतान from his सोचता hand. है इनको इमोशंस में रखो, बस इनके मुंह में वचन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वचन इनके मुंह में चला गया ये रात सुबह दिन दोपहर सब दिन मेरी धुनाई करेंगे। The devil says, keep them bound in emotions, because if the word comes in their mouth, they will beat me up day in day out. और परमेश्वर इस देश में एक पीढ़ी खड़ी कर रहा है जिनके मुंह में परमेश्वर का वचन है। And the Lord is raising up a generation in this nation that has the word of God in their mouth. Amen. It's not just in our hands. It is not a religious book. It is the sword of the Spirit. ये आत्मा की तलवार है जो हमारे मुंह में है। ये केवल हमारे हाथों में एक धार्मिक किताब नहीं, this is the sword of the Spirit which is in our mouth. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why, church, I'm again telling you, every night we are broadcasting Psalm 91 from our page, from our YouTube page. इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, चर्च हम हर रात को भजन 91 अपने पेज से चलाते हैं। Because we want you to hear that and then go to sleep. हम चाहते हैं आप उसको सुनते सुनते नींद में जाएं, You meditate on that. उसमें मनन करते हुए। क्योंकि जो वचन परमेश्वर का वचन है वो बीज की तरह आपके अंदर जाएगा, मगर दो धारी तलवार की तरह आपके मुंह से निकलेगा जब सही टाइम आएगा तो। Because the word of God will go into you as a seed, but will come out like a two-edged sword from your mouth. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, मैं आखिरी आयत इसमें बोल रहा हूं। With long life I will satisfy him and show him my salvation. मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार अब का आप दर्शन देख रहे हो क्या हुआ है यहाँ पे, You see what's happened क्योंकि here? दाऊद वो घोषणा कर रहा था परमेश्वर उसके लिए क्या है, अब परमेश्वर उसके मुंह से घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर क्या करेगा। Because David was declaring who God is for him, now God is declaring from David's mouth what God is going to do आप for him. बहुत बार देखोगे उसके भजन में कि वो परमेश्वर की आराधना करते जा रहे हैं, and suddenly Holy Spirit takes over. अब परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे दीर्घ आयु से आशीष करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। You will see this many times in the psalm when David is declaring for the Lord. Now the Holy Spirit takes over and he starts to say something. Now I will satisfy you with a long life and show you my जब salvation. आप परमेश्वर के पास जाओगे, उसके वचन लेकर घोषणा करने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा परमेश्वर आपका मुंह के द्वारा आपके जीवन के लिए घोषणा करने लग जाएगा। When you will go to the Lord with His word, you will not even realize when God will start making declarations from your mouth. Amen. Hallelujah. With long life I will satisfy him मैं दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूंगा and show him my salvation. और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता था मैं ये वचन बोलूं, The devil did not want me to तो रात say को this चींटी की word. तरह उसने मेरे को आंख में काट दिया। So he bit me in my eye like वो an यही कर सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मगर हमें वो पीढ़ी बनना है जिनके हृदय में और मुंह में परमेश्वर का वचन। But we have to be the generation that has the word of God in our hearts and in our mouths. आमीन। अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर Over घोषणा करो, ourselves, our children. दीर्घ आयु ने से परमेश्वर ने हमें तृप्त किया है। That Lord has given us a long life, satisfied us with a long life. आमीन। सो अब हम लोग घोषणा करेंगे कुछ। Now we are going to तैयार हो make आप some घोषणा करने के लिए? declarations. Are you I think ready? it will be awesome if you all will stand up. अद्भुत होगा। We will make these declarations together. खड़े होकर साथ में एक घोषणा करेंगे हम। मगर इससे पहले कि हम घोषणाएं में जाएं, मैं चाहता हूं आप लगाइए आयुब 22:28। Before we जो do the 22:28 मैं क्यों घोषणा करना जरूरी है विश्वासियों को? Why is it important for believers to declare? पहली चीज, The first thing, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी ये सृष्टि वचन की घोषणा के द्वारा बनाई। because God created the entire universe by the declaration of His word. आप पढ़ेंगे जेनेसिस 1 में, जेनेसिस 2 में, परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो गया, परमेश्वर ने कहा रात हो गई, परमेश्वर ने कहा दिन हो गया, परमेश्वर ने कहा समुद्र हो गया, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर जैसा उसने कहा वैसा हो गया। Genesis 1-2, you will see whatever God said He saw, whatever God said it was. He said light, He said whatever He said He Amen. made. फिर 1:26 में वो कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, मगर स्वरूप में बनाने इतना कुछ उसने बोला हो गया, फिर वो कह रहा है मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊं ताकि जो कोई हम भी घोषणा करेंगे वो भी वैसा हो जाएगा। In 1:26 He said, let us make man in our own image. So much I have made, but now we'll make man. So whatever man says will also happen like that. क्योंकि हम किसकी समानता में बनाए गए हैं? Who are we made like? आमीन, हालेलुया। हम चाइनीज कॉपी नहीं है, हम हेवेंस कॉपी हैं। We are not a Chinese copy, we are heaven's copy. आमीन। नोकिया का परमेश्वर ने नोकला नहीं बनाया, अडीडास का अबीबाज नहीं बनाया, जैसा वो है हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया ताकि जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं। Just as God is, that is how He has made us. So as He is, so are we. आमीन, हालेलुया। और फिर से कहा तुम प्रभुता करो।
And then he said, you reign. परमेश्वर एक जेनेसिस 1 से 26 आयत तक कैसे प्रभुता कर रहा था? From Genesis 1 to 26, how was God ruling? कैसे कर रहा था? How was अपने he मुंह ruling? के द्वारा बोलकर। आप कैसे प्रभुता करोगे? आप गरीबी के ऊपर प्रभुता कैसे करोगे? घोषणा करके। आप बीमारी के ऊपर प्रभुता कैसे करोगे? घोषणा करके। आप डिप्रेशन के ऊपर प्रभुता कैसे करोगे? घोषणा करके। आप सारे जादू टोना दुष्ट आत्माओं की शक्ति के ऊपर कैसे डोमिनियन लोगे? बोलकर। Just as God ruled by speaking, how will you have rule dominion over poverty, over sicknesses? By declaring, by speaking over everything. Amen. यहां पे हिंदी ने ना दोबारा लगा दी है बिंदी स्क्रिप्चर में। मुझे लगता है प्रभु हमें ये अनुग्रह दे कि हम लोग एक हिंदी वर्जन अच्छा रिलीज कर सकें। Amen. Amen. वो कह रहे हैं जो बात तू ठाने। इंग्लिश बाइबल सेज यू विल ऑल्सो डिक्लेयर अ थिंग। क्या करे? जिस बात की तू क्या करे? घोषणा करे। प्रभु नहीं कह रहा मैं घोषणा करूंगा, प्रभु कह रहे जिस बात की तू घोषणा करे, इट शैल बी established for you. The Lord is not saying I will declare. He's saying whatever you will declare, it will be established. Now hear this. The safest ground is सबसे सुरक्षित भूमि है we declare हम घोषणा करें what he has already declared. जो उसने पहले से ही बोल दिया है। Amen. So when you are declaring Psalm 91, you are declaring what he has already declared. जब आप भजन 91 की घोषणा कर रहे हो तो आप वो बोल रहे हो जो पहले से ही बोल बैठा है। Amen. Hallelujah. Because परमेश्वर के वचन का एक बिंदु भी न टलेगा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा। Because not even a dot of his word will go down, Now, even the heaven and you shall declare a thing and it shall be established for you, not for your neighbor, for you. जिस बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे लिए स्थापित होगी। अरे हम तो पड़ोसी के हमेशा कमी घटी में रहेंगे, Oh, we'll always declare live in lack. established हो जाएगा उसके। लिए। वो उसके साथ होगा। आप बोलोगे भैया हम कमी घटी में नहीं You say रहेंगे। I will not live in lack. That will be established for you. It will be established for you. वो आपके लिए स्थापित होगा। आपके लिए, आपके for you. पड़ोसी के लिए नहीं, Not for आपके your neighbor. पड़ोसी के लिए वो established होगा, वो स्थापित होगा जिसकी घोषणा वो करता है। Your neighbor will have what they will decree. आप घोषणा करते हो कि करुणा और भलाई सदा मेरे जीवन, तो आप जब भी चढ़ जाओगे आप कहोगे यार प्रभु इतना भला है, और दूसरे आपको देखें You इसके declare- साथ क्यों इतना भला है परमेश्वर? You ऐसे declare- कौन से छेपड़ लगे हैं इसके? You अरे वो declare his मुंह से वो बोल रहा है जो परमेश्वर जैसा है, और आप अग्री कर रहे हो शैतान के साथ। Amen. You declare his goodness and mercy will follow me, so you will see that in your life. Hallelujah. Amen. So our confessions or our declaration are supposed to be an echo of what God has already said. हमारे अंगीकार, हमारी घोषणाएं उस बात को दोहराने की होनी चाहिए जो परमेश्वर हमारे बारे में कह चुका है। Amen. अभी आपने वचन पढ़ा, You just read the अब word. आप- ये हम टाइम पास नहीं कर We रहे। are not- आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज की घोषणा करें, आत्मिक जगह में वो स्थापित किया जा रहा है। You must know that when we declare something in the spirit world, it is being established और for us. अगर मैं आपको उदाहरण दूं, इसको ऐसा समझिए, जब आप पहली बार बोलते हो तो वो ऐसा है जैसे किसी ने ग्राउंड में एक पोल डाल दिया है। If I have to give an example, the first time when we say it, it's like somebody stuck a pole. in जब the आप ground. बार बार बोलते हो ऐसा है, वचन का हथौड़ा मारो, टाक When we keep saying it, it's like नीचे 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 Hammer it with नीचे the word of नीचे God, करता it keeps जाता going deeper and है, और deeper and ऐसे हो deeper. जाता है कि उसको कोई हिला नहीं सकता आपके जीवन से। and it comes to a point where nobody can remove it from your life. Amen. Hallelujah. क्योंकि जीवन और मृत्यु कहाँ है? Where is life and death? अगर ये कवनेंट ऑफ लॉन्ग लाइफ है, If this is the covenant of long life, अगर ये दीर्घ आयु की वाचा है, if this is the covenant of long life, तो ये कहाँ है जीवन? where is this दीर्घ जीवन life? कहाँ है? Where is this life? मुंह में। और हम उसको रिलीज करेंगे आज And we are परमेश्वर। going to release it. सो जब आप घोषणाएं करते हो, अगर आपने विश्वास नहीं मिलाया ना घोषणाओं में, तो ये टाइम पास है, आप टाइम पास करने आए। So when you make declarations, if you do not mix faith in declarations, it is passing time. अगर आप कह रहे अरे ये क्या है, बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या, अरे तुम्हारे साथ नहीं होगा, If you say, oh, just because I speak it will happen, no, then it will not happen for you. हमारे साथ तो हो रहा है और होगा और 100% होगा, क्योंकि उसका us- वचन है जो कभी फेल नहीं होगा। For us, it has been happening and will keep on happening because His word will never fail. Amen. If you believe, you will see the glory of God. अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे. Hallelujah. Amen.